Students, in the last lecture on functions, I had already introduced the mathematical definitions for 1 and not 1 that is many one function. 1 injective function or non-injective function that is many one function. Let's do some practice problem on the non-graphical or analytical approach to determine the nature 1 or not 1 that is many one nature of the function. So I begin my lecture third with discussion of illustration 5 given on page 2.16 in RDS. In the question they have asked, find whether the following functions are 1 or not. The first part I give it as A. Function f is defined from set of real numbers to itself given by f of x is equals to x cube plus 2 for all x belonging to R. That's the function given. Now, in this given information only, you can make out certain points or certain important features. इस फंक्शन f की डोमेन R है और कोडोमेन भी R है. Now we have to see whether this function, find whether this function is 1 or not. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डोमेन R है तो इस डोमेन में हम कुछ इनपुट्स लेंगे. मैंने बेसिक स्टेप्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस एनालिटिकल अप्रोच या नॉन ग्राफिकल अप्रोच के, उसी को फॉलो कर रहा हूं. तो हम कोई दो इनपुट्स ले रहे हैं इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f such that we assume here in the first step that the function is what? Many one function. So f of x1, what is your f of x? X cube plus 2. So f of x1 will be, in place of x we are going to substitute it as x1, so it will be x1 cube plus 2, and f of x2 will be, in place of x we are going to substitute it as x2, so x2 cube plus 2. 2 gets cancelled out. We can bring this term, transpose x2 cube to the left hand side. We get a cube minus b cube form we can apply. So x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square equals to 0. So what do we have in this? The product of these two terms is 0. So what can we conclude? That either x1 minus x2 equals to 0 or x1 square plus x1 x2 plus x2 square is equals to 0. Then what happens? From this part, x1 minus x2 equals to 0, we get x1 equals to x2. And from this part, can we see x1 square plus x1 into x2 plus x2 square equals to 0? This is possible if and only if when सिर्फ आप देख सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल, आप खुद भी सोच सकते हैं. ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 एक ही वैल्यू के लिए होगा, x1 x2 की एक ही रियल वैल्यू के लिए, फॉर x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 0. तो अगर हम दोनों फॉर्म्स ऑफ सोल्यूशन देखें तो दोनों फॉर्म्स ऑफ सोल्यूशन में हमको एक ही फॉर्म मिल रहा है. अगर आप देखें, विच इज x1 equals to x2 form, isn't it? So this equation 1, so what we are going to write? Thus equation 1 gives 1 and only one solution of the form x1 equals to x2
of the form x1 equals to x2. So therefore I can say that हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके we get one and only one possible solution of the form x1 equals to x2. So then we conclude that the given function is what? Is a 1-1 function. Is a 1-1 function. ये पूरा जिस तरह से मैंने स्टेप वाइज आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया, यही आपका सॉल्यूशन होना चाहिए इन बोर्ड एग्जाम. इसी तरह से आपको इसी स्टेप वाइज अप्रोच से या स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन से आपको अपना सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन योर 12th बोर्ड एग्जाम. x³ + 2 का ग्राफ अनऑफिशियली बनाता हूँ. x³ + 2 का ग्राफ मैं अनऑफिशियली ड्रॉ करता हूँ, इसीलिए रफ में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो वी नो द ग्राफ ऑफ x³. द ग्राफ ऑफ x³ इज y = x³. यू नो दैट क्यूबिक मोनोमियल का इट पासेस थ्रू द ओरिजिन. तो इसके और इसके ग्राफ में क्या फ़र्क है? यहाँ ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, जबकि ये ग्राफ क्या हो रहा है, 2 यूनिट्स ऊपर. कुछ इस तरह का होगा. ये पॉइंट हो जाएगा 0,2. अब आप कि अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूं पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइंस, तो इसीलिए ये 1-1 फंक्शन. पर ये आप अप्रोच सिर्फ चेक करने के लिए अपने सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं. बोर्ड एग्ज़ाम में आप ग्राफिकल अप्रोच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे. यस, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जिस अप्रोच के जिस तरह से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने पूरी अप्रोच और पूरी डिस्क्रिप्शन आपको इसके ज़रिए दे दी. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्म में. सो आई टेक इट एज बी पार्ट. The function f defined from R to R given by f of x equals to x² plus x for all x belonging to R. Yes, अब again we have to find whether this particular function is 1-1 or not. So let's see. तो अगेन नॉन ग्राफिकल या एनालिटिकल अप्रोच से अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या करूँगा, डोमेन दिया हुआ है R और कोडोमेन भी R. तो डोमेन R में हम लोग क्या लेंगे, 2 इनपुट्स x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू R, डोमेन ऑफ F. Such that f of x1 is equals to f of x2. So what is your f of x1? In place of x we replace, जहाँ जहाँ x है we replace it by x1, so it is x1 square plus x1. And what is f of x2? In place of x we replace it by x2, so it is x2 square plus x2. अब सारी टर्म्स को हम एक साइड कर लें तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b.
So x1 minus x2 is common. So what are you left with? x1 plus x2 plus 1 equals to 0. So either x1 minus x2 equals to 0 or x1 plus x2 plus 1 equals to 0. और कोई आप रियल वैल्यू सोच सकते हैं हिट एंड ट्रायल से. तो अगर मैं यहाँ देखिए x1 को 0 और x2 को -1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, या x1 को -1 x2 को 0, और भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे. बट इससे मुझे काफ़ी होगा ये जानने में कि x1 और x2 दोनों बराबर नहीं है. जबकि इस फॉर्म में हमको x1 इक्वल्स टू x2 फॉर्म, तो x1 इक्वल्स टू x2 फॉर्म के साथ साथ हमको ये अलग से भी पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस केस में दस इक्वेशन 1 gives x1 equals to x2 as one of the possible solutions. One of the possible solutions. One and only one solution की बजाय one of the possible solution जब ये फॉर्म हो जाए तब हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? We conclude that the function is not one, that is it is many one. So therefore the function f defined from R to R given by f of x equals to x square plus x for all x belonging to R is what? Not one. Not one function implies that is what? Many one function. Yes, I hope you are getting the idea now. Taking up another question, illustration 5, second part. It says function f defined from z to itself given by f of x equals to x square plus 1 for all x belonging to z. Yes, अब again we have to find that the function is 1 or not. अब इसको करने के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के, अगर R to R था तो हमने बताया आपको यहाँ R नहीं है आपका डोमेन या कोडोमेन, तो दिस Z to Z is a subset of R. Am I right? तो क्या करेंगे हम? हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं. एक काउंटर एग्जाम्पल के जरिए, आई विल कम टू दिस लेटर ऑन, और एक जो हम लोग नॉन ग्राफिकल या एनालिटिकल अप्रोच लगा रहे हैं उसके जरिए. तो यहाँ Z इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन. तो डोमेन और कोडोमेन दोनों Z है, isn't it? तो क्या करेंगे? दो इनपुट्स लेंगे x1, x2 belonging to Z, which is the domain of f. Such that f of x1 is equals to f of x2. f of x1 हो जाएगा x, तो x की जगह x1 से रिप्लेस किया तो x1 स्क्वायर प्लस 1, x की जगह x2 से रिप्लेस किया तो x2 स्क्वायर प्लस 1. ये कैंसिल आउट हुआ, x2 स्क्वायर को दूसरी साइड लेके गए तो x1 माइनस x2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया. तो आइदर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2, जो कि दोनों पॉसिबल हैं. अगर आप देख सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ वैलिड हैं, isn't it? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन नहीं दे रहा.
x1 इक्वल्स टू x2 वन एंड ओनली वन सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, thus इक्वेशन 1 gives x1 equals to x2 form as one of the possible solution। तो वन एंड ओनली वन सोल्यूशन की जगह जब वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन हो तब हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे। सो देयरफॉर द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम z to itself given by f of x equals to x square plus 1 for all x belonging to z is what, many one function, is many one function। अब काउंटर एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते थे यहाँ, जैसे कि मैं इंटीजर्स लेने हैं तो f ऑफ 1 क्या होगा बेटा, तो f ऑफ 1 देख लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2, और f ऑफ माइनस 1 क्या होगा, तो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज अगेन 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 1 फॉर इनपुट x1 विच इज 1 नॉट इक्वल्स टू इनपुट x2 विच इज माइनस 1। तो दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स, अलग अलग इनपुट्स के लिए इट इज़ फेचिंग यू द सेम आउटपुट। तो काउंटर एग्जाम्पल से भी आप डायरेक्टली, तो देयरफॉर अगेन यू कैन कंक्लूड। अब दोनों में जो आपको इजी लगे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। और तीसरा है, आप इन वैल्यूज़ के ज़रिए अगर मैं एरो डायग्राम बना लूँ तो उससे भी आप भली भांति समझ जाएंगे। इसको समझाने के लिए मैं एरो डायग्राम बना रहा हूँ। यस, 1 पे भी 2 था और -1 पे भी 2 आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं। यस, कि जब फंक्शन f इज व्हाट, ए मेनी वन फंक्शन और नॉट वन फंक्शन। यस, तो काउंटर एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल के अलावा आप जो भी अप्रोच, चाहे काउंटर एग्जाम्पल के ज़रिए, चाहे एनालिटिकल अप्रोच के ज़रिए या मैथमेटिकल डेफिनेशन के ज़रिए, और साथ साथ एरो डायग्राम बताते हुए अगर आप अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके एलिजिबल होंगे, मान्य होंगे। यस, सो यू कैन टेक ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑल्सो। in which function f is defined from c to c given by f of z equals to z cube plus 4 for all z belonging to c। अब अगेन मुझे इसमें देखना है, ऑब्वियसली ये c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ आई हैव टू फाइंड वेदर द फंक्शन f इज 1 1 और नॉट। तो वही अगर मैं इसमें z1 z2 लेके चलूंगा, isn't it? तो एनालिटिकल अप्रोच या नॉन ग्राफिकल अप्रोच के जरिए आप ट्राई करिएगा एज होमवर्क एट होम। यस, एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ। सो वी हैव यू ऑलरेडी नो अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्लास 11th का ये पोर्शन था। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज भी जानते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1। अगर मैं इसको यूज़ करूं, ऑब्वियसली इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा क्यूब। तो व्हाट इज एफ ऑफ ओमेगा क्यूब, तो इसको अगर मैं लिखूं ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, क्या होगा, ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 क्यूब प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इज 5 एंड ओमेगा क्या होगा, तो एफ ऑफ ओमेगा विल बी z की जगह ओमेगा क्यूब प्लस 4 अगेन
we know omega is 1 plus 4 which is again 5. तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ओमेगा हो, एफ ऑफ ओमेगा हो, ओमेगा स्क्वायर हो या ओमेगा क्यूब हो, they are all different distinct inputs but generating the same output. So what can we conclude? So we can conclude that the function f defined from C to C given by is many one function or not one function. Yes. Further, you can mark some questions as practice problems as your homework, in which it says that check whether the following functions are injective or not, whether they are many one or many one. The first one says f is a function defined from R to R given by f of x is equals to 2x square plus 1 for all x belonging to R. Second question, function g defined from z to itself given by g of x equals to x raised to power 4 for all x belonging to z. Question number third, function h defined from R to R given by h of x equals to x cube minus 4 for all x belonging to R. And fourth one is function f1 defined from R to R given by f1x is equals to x square minus 3 for all x belonging to R. You can take this 4 question as your practice problem. Moving further, let's calculate the total number of 1-1 mapping or injective mapping that can be developed or defined between two non-empty sets or number systems. So if f is a function defined from set A to set B such that the cardinality number of elements in the set A, finite elements in set A is m, and finite elements in set B will be n, then let's develop the total number of one-to-one functions or mapping or injective mapping that can be defined from the set A to set B is, so let me draw a pictorial diagram. Set A consisting of m elements, set B consisting of n elements, so by fundamental principle of counting, you've already studied the fundamental principles of counting in class 11th. 1-to-1 means one input must have only one output. So input, how many values can be assigned to input x1? So input x1 has n choices, n options, so it can take n outputs, isn't it, as its choices. और 1-to-1 है
तो जो भी इन n आउटपुट में एक आउटपुट आप असाइन करेंगे वो रिपीट किसी और इनपुट के लिए रिपीट नहीं होगा। तो सिमिलरली इनपुट x2 विल हैव ऑल्सो, एक ऑलरेडी x1 को आउटपुट मिल चुका है, x1 के रिस्पेक्ट में एक आउटपुट मिल चुका है उसको, तो x2 के लिए कितने चॉइसेस होंगे, n-1। सिमिलरली इनपुट x3 के लिए, तो x3 तक पहुंचते हुए दो इनपुट्स को आप कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट असाइन कर चुके हैं आउट ऑफ n ऑप्शंस, n चॉइसेस दैट यू आर अवेलेबल टू यू। दो चॉइसेस आप ऑलरेडी असाइन हो चुका है, तो कितने बचेंगे आउटपुट्स, n-2 आउटपुट्स। कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर, इनपुट xm कैन टेक आउटपुट्स कितने, n से n आउट, mth आउटपुट से पहले आप कितने असाइन कर चुके हैं, m-1 इनपुट्स को, mth इनपुट से पहले m-1 आउट इनपुट्स को आप असाइन कर चुके हैं। तो n- कितने ऑप्शंस बच गए आपके पास आउटपुट के चॉइसेस, तो n-m+1 आउटपुट्स या चॉइसेस, इजंट इट। कितने वेज में लेंगे, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। सो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन। सो ऑब्वियसली बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल total number of one functions or injective mappings defined from set A, finite set A to finite set B is, क्या होगा इन पर, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 कहाँ तक, n-m+1, एम आई राइट। और इसको आप लोग ये भी पढ़े हैं लास्ट ईयर कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट को आप कैसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इतने वेज होंगे और कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ये, तो इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज NCM इंटू m फैक्टोरियल, और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज NPM। तो चाहे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें चाहे परमुटेशन के फॉर्म में लिखें, और ये पॉसिबल कब है, जब आपके n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। NPM या NCM कब डिफाइंड होता है, व्हेन n मस्ट बी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मस्ट बी, ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी मोर देन द ऑब्जेक्ट्स एट हैंड, या जो जिसकी चॉइसेस करनी है या ग्रुप फॉर्मेशन करना है, मैं राइट। तो दैट इज, दिस इज पॉसिबल व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ द सेट B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट A। अगर इससे कम हो जाए तब क्या होगा, तब वन फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, मतलब number of one mappings will be 0 if n is less than m, that is less than cardinality of A। yes, तो हम लोग ने जो पिछले साल पढ़ा है उसी की एक एप्लीकेशन पढ़ ली। yes, और पीछे हम लोग ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ के आए हैं कि A to B में कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं, तो दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड। So also we know that the total number of possible functions defined from set A into set B, ये हम लोग ने ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट B रेज टू पावर n रेज टू पावर m। यस, ये टोटल फंक्शंस हैं। तो देन हम लोग कह सकते हैं
कि जितने 1-1 मैपिंग हैं, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग एंड many one मैपिंग is equals to total number of functions, am I right? और पीछे हम लोग 1-1 मैपिंग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब many one मैपिंग कितने many one फंक्शंस हम डेवलप या बना सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन फाइंड दैट ऑल्सो। तो उसके लिए भी हमारे पास एक इन कंडीशंस पर एक फॉर्मूला आ जाएगा। यस, सो व्हाट इट इज, देयरफॉर total number of many one functions, or I can say not 1-1 functions, functions भी कह लें या mappings कह लें, एक ही बात है, defined from set A to set B is इक्वल्स टू, तो टोटल फंक्शंस थे n⁻m, उसमें से हम npm माइनस कर रहे हैं या ncm इंटू m फैक्टोरियल फॉर if n of b is greater than equals to n of a, and secondly it is n⁻m number of 1-1 फंक्शन 0 होते थे, पीछे पड़े हैं, इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, तो सारे के सारे फंक्शंस मैनी वन हो जाएंगे इस केस में, इजंट इट? सो ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोगों ने बात कर ली। मूविंग फर्दर, लेट अस कम टू दी, अभी तक हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन, ग्राफिकली सब कुछ देख लिया फॉर 1-1 एंड many one मैपिंग्स। अब हम चलते हैं, वी गो टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन और एनालिटिकल डेफिनेशन, सो टू से द नॉन ग्राफिकल अप्रोच और द थियोरेटिकल अप्रोच टू डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या मैपिंग को हम सरजेक्शन भी कहते हैं या सरजेक्टिव फंक्शन या मैपिंग भी कहते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो कहता है कि अगर f कोई फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ एन ऑन टू फंक्शन, कब? इफ़ एंड ओनली इफ when the range of the function f is equals to the codomain of f, that is range of function f is equals to, तो कोडोमेन सेट कौन सा होता है? ये B होगा कोडोमेन सेट। तो अगर फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर हो, दोनों इक्वल सेट्स हों, yes, then the function is said to be an onto function. That is, if each image या output element, each image element या output element in the codomain set B has at least one pre-image या input element in the domain set A, then the function is a what? Surjection. Yes, that is, इसको भी फर्दर मैं एलाबरेट कर दूं, that is for all element y, output y belonging to set B, there exist
at least one element x belonging to the domain set A such that f of x equals to y, then the function f defined from A to B is an onto function. Otherwise, the function is not an onto function. That is, it is an into function. और डेफिनेशन क्या होती है इनटू फंक्शन की? तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होता है. ऑन टू के लिए क्राइटेरिया बना कि रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू द कोडोमेन सेट. तो इनटू के लिए क्राइटेरिया क्या बनेगा? दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ, इफ इट इज ओनली ए सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, मतलब द रेंज is part of the set B. Are you getting? तब हम कहेंगे कि फंक्शन f क्या है? into function. Yes guys, let us refer to the page 2.17 of R.D. Sharma, where we have in illustration 1 two pictorial diagrams. Let me draw that pictorial diagrams, arrow diagrams. एक में फंक्शन f डिफाइंड है, दूसरे में फंक्शन g डिफाइंड है. यस, क्या f फंक्शन है फ्रॉम a टू b? जरा चेक कर लीजिए. फंक्शन f फंक्शन है कि रिलेशन है? तो यस, इट इज़ फंक्शन. आप देख सकते हैं फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैंडेटरी कंडीशन. g भी फंक्शन है, मैंडेटरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. अब आप देखिए यहाँ फंक्शन f की रेंज क्या होगी? तो रेंज मतलब आउटपुट्स जो मैप्ड हैं ये सब. तो सेट बी क्या है आपका? इस केस में कोडोमेन सेट है फंक्शन f के पर्सपेक्टिव में. और जो ये मैंने एनसर्कल किया है ये रेंज है ऑफ f. तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ? दैट रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ पार्ट ऑफ, ये जो है ये हिस्सा है ऑफ दिस कोडोमेन सेट. तो फंक्शन f कैसा वो फंक्शन हो गया? f defined from A to B is what? It is an into function. अब आ जाइए g फंक्शन जो कि x to y में डिफाइंड है, इसकी भी रेंज देख लीजिए. तो ये है रेंज, ये आउटपुट एलिमेंट्स है. सेट y क्या है? कोडोमेन सेट है. तो ये रेंज है, अगेन दिख रहा है. This range is part of the codomain. So range of the function g is part of, so it is again I can say function f. g is also into function. अच्छा है, मैनी वन है कि वन है? तो आप देखें पूरी नेचर डेवलप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. तो इनपुट A2 का भी एक ही आउटपुट है, इनपुट A4 का भी एक ही आउटपुट है. यहाँ भी इनपुट X1 का भी एक ही आउटपुट है, इनपुट X2 का भी सेम आउटपुट है. तो क्या हुआ ये? दिस इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन. ये भी मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है, दोनों के दोनों. अब इसी के रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा चेंज ला के एक और पिक्टोरियल डायग्राम, एरो डायग्राम आपके सामने रखता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ इलस्ट्रेशन 1A पार्ट. फंक्शन f है. अब देखिए इफ़ आई आस्क, तो यहाँ दिख रहा है कि ये पूरी सेट बी अगर कोडोमेन सेट है
तो रेंज सेट भी पूरा का पूरा सेट भी ही है, तो यहाँ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो रहा है और दिख रहा है इनपुट A2 and A4 has one output B2. So this is an example of arrow diagram of many one and onto function, isn't it? और गिवन है इलस्ट्रेशन 2 में आप फंक्शन f और g को आइडेंटिफाई करेंगे. यू कैन टेक दिस एज योर होमवर्क. यस, और एक मैं पिक्टोरियल डायग्राम और दे रहा हूँ जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना, ये भी आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही है. इसमें you identify through this arrow diagram the type of the function. This is your homework.